Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and this is our last topic of this chapter, chapter number 13, market equilibrium under perfect competition. Okay, and the topic is price ceiling and price floor. Yani simple applications of tools of demand and supply curves, in which we will study about the price ceiling and price floor. Okay, and this is our lecture number 4. So let's start. So far, we studied about the concept of market equilibrium, how to determine the market equilibrium in a market equilibrium. Okay, under perfect competition market, हम under perfect competition market कैसे equilibrium जो है वो determine करते हैं, ये हमने study किया. How to determine the equilibrium price and equilibrium quantity. So after that, we studied about the Yes, we studied about the excess demand and excess supply. ओके एंड हमने ये भी स्टडी किया है कि जब हमारे पास एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशंस होती है तो उसके अंदर हाँ, कैसे मार्केट फोर्स के जरिए कैसे वो एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की जो ये सिचुएशन है इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है, मार्केट में कैसे इसे किया जाता है और वापिस मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैसे हम पहुंचते हैं, तो वो हमने स्टडी किया. Next, we studied about the three basic assumptions of market equilibrium under perfect competition market. Okay. Then we studied about the shift or change in demand and market equilibrium. It means we studied about the increase in demand and decrease in demand. ठीक है, हमने क्या करा था? We studied two aspects of shift in demand. So first is इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड. ओके, सो हमने ये डायग्राम के थ्रू जो है हमने स्टडी किया था कि कैसे जो है इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड जब होती है तो कैसे डिमांड कब शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, एंड देन वो कैसे एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कैसे पहुंचता है, वो सब हमने स्टडी किया था. ओके, हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन डिमांड कब shift to the right, and how is new equilibrium struck when demand curve shift to the left. Okay. After that we studied about the shift in demand and equilibrium price, some exceptional situations. ठीक है, कुछ exceptional cases के अंदर हमने देखा था कि जब डिमांड शिफ्ट होती है, ठीक है, जब डिमांड में चेंज आता है तो कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस में भी क्या चेंज आता है, तो वो कुछ सम एक्सेप्शनल केसेस में क्या था, व्हेन द supply curve is perfectly elastic and when the supply curve is perfectly inelastic. Okay. Then after that we studied about the shift in supply और चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पर भी हमने क्या देखा था, yes, so demand or shift in supply curve has two aspect, increase in supply and decrease in supply. So क्या हमने देखा था कि increase in supply and decrease in supply में कैसे हमारा जो supply curve है वो rightward या leftward shift करता है, और जब वो shift करता है तो किस तरीके से वो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचता है. हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन supply curve shift to the right, and how is new equilibrium struck when supply curve shift to the left. Okay, then after that we studied about the shift in supply and equilibrium price, some exceptional situations. So ये situations क्या थी, when demand curve is perfectly elastic and when the demand curve is perfectly inelastic. ठीक है, perfectly elastic में जो हमारा demand curve था वो parallel to OX axis horizontal line था, और इन perfectly inelastic में हमारा demand curve कैसा होता है, parallel to OY axis vertical line. So why price remains unaffected when demand curve is perfectly elastic and supply curve shifts. And now when demand is perfectly inelastic, then Y quantity remains unaffected when demand curve is perfectly inelastic and supply curve shift. Okay. Now today we will discuss about the simple applications of tools of demand and supply curve. ये आज हमारा जो है टॉपिक है
स्टडी करने का कि सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट this topic. So we have studied supply demand analysis in terms of consumer behavior and producer behavior. हमने consumer behavior और producer behavior दोनों की terms में हमने supply demand analysis जो है वो study की है हमने. Okay, and we have also studied how equilibrium is established in a competitive market. हमने ये भी study किया कि कैसे जो है competitive market में equilibrium जो है कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, कैसे डिटरमिन किया जाता है, वो भी हमने स्टडी किया. जैसे याद होगा आपको, ये हमने स्टडी किया था, ये हमारा डिमांड कर्व था, ये हमारा सप्लाई कर्व, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा और वही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और वही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी. तो ये हमने और यहाँ पे हमने ये कॉम्पिटिटिव मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था, जहां पर सभी फर्में जो है इस ओपी प्राइस के ऊपर अपने क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है. ठीक है, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देती है. तो ये हमने किया था यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR. ओके, ये हम स्टडी कर चुके हैं. सो फर्दर वी एनालाइज हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर इम्पैक्टेड बाय चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. देन फिर हमने क्या स्टडी किया कि जो हमारा ये इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो कैसे इम्पैक्टेड होती है जब डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड या फिर सप्लाई में चेंज आता है. तो या तो डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सप्लाई आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उनमें कैसे चेंज आएगा, कैसे उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमने स्टडी किया. नाउ द प्रेजेंट सेक्शन स्टडीज सम सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व. अब जो हम इस सेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, कुछ जो है हमारे पास सम सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व. सप्लाई एंड डिमांड करके टूल्स के कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, उनको स्टडी करेंगे. एंड द स्टडी फोकस ऑन 2 केसेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द कमोडिटी मार्केट. और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कमोडिटी मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की 2 केसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है. एक हमारे पास है प्राइस सीलिंग एंड सेकंड इज प्राइस फ्लोर. ओके, नाउ प्राइस सीलिंग. So what is price ceiling? So we know in a competitive market, price of goods and services are determined by the force of supply and demand. Okay, अब तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगी ये बात कि कम्पिटेटिव मार्केट के अंदर जो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस होते हैं वो कैसे डिटरमिन किए जाते हैं. मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड के फ्री फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमिन करते हैं. Okay, so in competitive market या in under perfect competition market. और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में हमारी इंडिया भी आ जाता है. तो डेवलपिंग कंट्री लाइक जैसे इंडिया है, वहां पर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ लाइक जैसे फूड ग्रेन है एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं आर ऑफन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली स्कार्स. कि आप ये देखते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारा इंडिया है, वहां पर जो हमारी लाइफ के लिए जो एसेंशियल गुड्स होती हैं, जो बहुत नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, मेडिसिन हो गई, एजुकेशन हो गई, तो इनकी हमेशा ही क्या होती है, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमेशा इन चीजों की क्या होती है, कमी पाई जाती है. ठीक है, एक्सट्रीमली स्कर्स, बहुत कमी पाई जाती है. सो कॉन्सिक्वेंटली देयर ओपन मार्केट प्राइस आर ऑफन वेरी हाई. तो वहां पर क्या होता है कि ओपन मार्केट के अंदर ना इनके जो प्राइसेस होते हैं, जो ये नेसेसिटी गुड्स होती हैं, इनके प्राइस अक्सर आप देखोगे बहुत ज्यादा हाई होते हैं. और these prices may be so high that the bulk of poor population find to it difficult to buy them. और ये इनके जो प्राइसेस जो है ना वो इतने ज्यादा हाई होते हैं कि हमारी कंट्री के जो पुअर पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन का जो बल्क है, यानी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन, वो डिफिकल्ट, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन हायर प्राइसेस के ऊपर गुड्स को परचेज करना. वो परचेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि मार्केट में इनके प्राइसेस, ओपन मार्केट में इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं. सो इससे क्या होता है, जब वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं ले पाएंगे तो उससे वो क्या होंगे, इट लीड्स टू अंडर नरिशमेंट, okay, and malnutrition.
तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो इन हाई प्राइसेस के ऊपर मार्केट से जो गुड्स हैं उनको परचेज कर सके, तो जिसकी वजह से वो अंडर नरिशमेंट या फिर आपके और मल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो सच अ सिचुएशन ऑफन कंपेल्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्राइस सीलिंग। तो ऐसी सिचुएशन, जब इस तरह की सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर आ जाती है, तो गवर्नमेंट जो है ना उसको मतलब उसको कंपेल किया जाता है या वो मजबूर हो जाती है कि वो प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस करें। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट इज प्राइस सीलिंग, क्या होती है प्राइस सीलिंग, कि जो मतलब इस तरह की सिचुएशन में जो ये प्राइस सीलिंग है वो कैसे हेल्प करती है पुअर सेक्शन, जो हमारा पुअर सेक्शन है इकोनॉमी का, जो परचेज नहीं कर पाते हैं मार्केट से गुड्स को, तो उनको कैसे उनको हेल्प करती है इस चीज के अंदर। तो प्राइस सीलिंग मीन्स कि फिक्सिंग अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी का ना मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमोडिटी जो होती है, गुड होती है, उसका एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई इससे ज्यादा प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। और वो जो मैक्सिमम प्राइस फिक्स करती है ना, वो प्राइस हमेशा जो हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है उससे कम होता है। जैसे कि जैसे ये देखिए आप, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस अभी मैंने आपको पीछे किया, आपने कैसे करा है कि ये आपका डिमांड कर्व है ओके मार्केट का, ये आपका सप्लाई कर्व है ओके। देन यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस, ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी, ठीक है, ये ओपी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब जो यहाँ इस प्राइस सीलिंग के अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो प्राइस ऐसा प्राइस है ओपी, ये प्राइस वो प्राइस है जो कि इतना हाई है कि जो पुअर सेक्शन है वो इस प्राइस के ऊपर परचेज नहीं कर पा रहा है गुड्स को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग करती है। प्राइस सीलिंग के अंदर क्या करती है, इस जो ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, इससे कम प्राइस फिक्स करती है। जैसे उसने ओपी की जगह OP1 फिक्स कर दी है यहाँ पर कि भाई अब ये जो गुड है ना इसके प्राइस जो है ना OP1 मैक्सिमम प्राइस है, इससे ऊपर प्राइस, इस प्राइस पर ये प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ये इन पुअर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग, जो कि एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट जो है इस प्राइस को हमेशा इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से कम पर इसे फिक्स करती है ओके। So yes, so you can see in this diagram. So this diagram show the price ceiling. Price ceiling को ये show कर रहा है ये diagram. तो इस figure के अंदर आप क्या देख रहे हो, जो आपका MSB है, MSB is the demand curve. ये आपका MDB is the demand curve and MSD is the supply curve. सप्लाई कर्व ओके। तो अब ये जो फिगर है देखिए, ये फिगर किस चीज के लिए वो कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जब क्या करती है, जब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो सप्लाई और डिमांड जो है, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस आर इम्पैक्टेड। तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड होंगी ना, वो दोनों की दोनों इफेक्ट, दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, अब ये जो फिगर है ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं इसको। सो हम क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट अ कंसर्न कमोडिटी इज बाजरा, कि हम एक अज्यूम मान के चल रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर कंसर्न कमोडिटी ली है, जिससे जो जो हमने गुड ली है, जिसके जिसको कंसर्न करते हुए हम ये चीज बता रहे हैं, ये अपना प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो वो हमारी कंसर्न कमोडिटी क्या है, बाजरा। एंड दिस इज अ स्टेपल फूड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. So there is a large number of buyers and sellers of bajra in the desert of Rajasthan. क्योंकि राजस्थान का स्टेपल फूड है, तो राजस्थान में जो बाजरा के बायर्स और सेलर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। सो द मार्केट फॉर बाजरा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ परफेक्ट competition. So accordingly we are assuming that the market price of bajra is determined by the force of supply and demand. इसलिए हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो यहाँ पर बाजरे के प्राइस हैं, मार्केट प्राइस हैं, वो किसके थ्रू इन्होंने डिटरमिन किए हैं, मार्केट के अंदर फ्री फोर्स से, किसकी, सप्लाई एंड डिमांड की। तो ये सप्लाई और डिमांड जो कर्व है, इसके फ्री फोर्स से बाजरा के ये प्राइस जो है, ओपी मार्केट प्राइस जो है, ये फिक्स कर दिए इन्होंने, ठीक है, ओपी।
क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एमबी जो एम ये आपके पास एमडीबी मतलब कि ये क्या है, डिमांड कर्व। एमएसबी इज द सप्लाई कर्व ऑफ द बाजरा, ये दोनों बाजरा के डिमांड और सप्लाई कर्व है। सो और ई क्या कर रहा है, ई इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड ओपी, ओके, ओपी जो है, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओक्यू, दिस इज ओक्यू, ओक्यू is the equilibrium quantity. So considering the fact that the poor people in the in the desert of Rajasthan cannot afford to buy bajra at OP price. अब यहाँ पर हम ये फैक्ट जो है जो कंसीडर किया जा रहा है कि जो राजस्थान में जो लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है, वो इस ओपी प्राइस के ऊपर जो बाजरा के फिक्स किए गए हैं, इस ओपी प्राइस के ऊपर बाजरा को परचेज करने के लिए, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि वो इस प्राइस के ऊपर, ओपी प्राइस के ऊपर बाजरा को परचेज कर सके। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करती है, दो गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस सीलिंग, गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, प्राइस सीलिंग कर दी, फिक्स कर दिए प्राइस, और वो फिक्स प्राइस कितने करिए करे हैं, ये ओपी स्टार, ठीक है, ये ओपी स्टार, तो ये उसने फिक्स कर दिया, यानी उसने प्राइस सीलिंग कर दी। और ये क्या है आपके, आप देख रहे हो, इट इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। पहले ओपी थे इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, अब ओपी स्टार जो प्राइस है वो इस मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि द स्टोरी डजंट एंड हियर, अब यहीं पर हम सोचे कि भाई स्टोरी खत्म हो गई, कि भाई प्राइस सीलिंग कर दी, चलो भाई काम खत्म हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, सब कुछ हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं। जो सीलिंग प्राइस इज लाइकली टू इम्पैक्ट द मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। जब सीलिंग प्राइस सीलिंग की जाती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो व्हेन प्राइस रिड्यूस, जब हमने प्राइस रिड्यूस किए, यहाँ देख रहे हैं ओपी से ओपी स्टार पर किए, तो डिमांड फॉर बाजरा एक्सटेंड, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, अब जब यहाँ पर किया तो अब सप्लाई का यहाँ पर आ गया और डिमांड कब का यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास डिमांड तो बढ़ गई, ओ क्यू वन, ओ क्यू टू, डिमांड इंक्रीज हो गई बाजरे के लिए, ठीक है ना, बाजरे के लिए डिमांड एक्सटेंड हो गई, ओक्यू से ओक्यू टू पर पहुंच गई है। और ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सप्लाई कम हो गई, वो कितनी दिख रही है यहाँ पर, वो ओक्यू से ओक्यू वन ही रह गई, यानी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई और डिमांड एक्सटेंड हो गई। तो किस चीज की सिचुएशन है ये, एक्सेस डिमांड की, या आप ये कहो डेफिशिएंट सप्लाई की। तो कॉन्सिक्वेंटली a gap emerges between market demand and market supply. So it is the situation when ये वाली situation किसको दिखा रहा है, when demand is greater than supply, कि यहाँ पर डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, और a situation of excess demand. So in the diagram excess demand आपके पास जो AB है, ये AB, ठीक है, excess demand AB is equal to Q1 Q2, या you can see कि OQ2 minus OQ1, that is Q1 Q2. Okay, so excess demand for बाजरा has its own implication. जो ये बाजरा की जो ये एक्सेस डिमांड है ना, इसकी अपनी कुछ इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, अपने कुछ इसके इफेक्ट होते हैं, कुछ रिजल्ट निकलते हैं, और वो क्या है कि यहाँ पर देखिए कि इट shows that the people feels to buy बाजरा to extent they wish to buy. अब ये किस चीज को शो कर रहे हैं, देखो डिमांड तो ज्यादा हो गई, लोगों ने डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर दी जब प्राइस सीलिंग हुई, लेकिन सप्लाई हो गई कम। तो अब जो लोग हैं वहां पर, पीपल हैं, हमारी पब्लिक है, जितना वो खरीदने की इच्छा रख रही है, जितनी उनकी विश है खरीदने की, उतनी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी उस विश को, उनको उतनी उन्हें वहां पर मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है। सो अकॉर्डिंगली अ सिचुएशन ऑफ पार्शियल हंगर में कंटिन्यू एग्जिस्ट। तो अब क्या होगा, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी टैकल, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है। सो कैसे टैकल करेंगे, राशनिंग इज द रेमेडी, राशनिंग एक यहाँ पर क्या है, इसकी एक रेमेडी है। ईच पर्सन इज एलोकेटेड अ फिक्स कोटा ऑफ बाजरा एट द सीलिंग प्राइस, इस सीलिंग प्राइस के ऊपर क्या किया जाता है, राशनिंग में क्या किया जाता है, इस सीलिंग प्राइस के ऊपर हर एक पर्सन का एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है।
सो अकॉर्डिंगली एवरीबडी गेट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी, ताकि हर किसी पर्सन को ना उस कॉमोडिटी की एक फेयर अमाउंट मिल जाए। ये ना हो कि कुछ लोग तो जो है सारा का सारा प्रोडक्ट ले जाएं खरीद कर, और कुछ लोग जो है वो अभी भी ऐसे ही बैठे रह जाए, खाली बैठे रह जाए, उनको मिले ही ना कुछ भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दिया जाता है कोटा। सो द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इज एड्रेस्ड अलोंग विद द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस, बट प्राइस सीलिंग विद राशनिंग इज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द डिमेरिट्स। लेकिन आप ये कहो कि अब राशनिंग कर दी गई, अब फिर प्रॉब्लम सोल्व हो गई, खत्म हो गई प्रॉब्लम की, राशनिंग कर दी गई, सबको जो है एक फिक्स अमाउंट मिल गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये राशनिंग है, कास्टिंग कर तो जी जाती है प्राइस सीलिंग के साथ, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ डिमेरिट्स है। वो क्या है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में भी नोटेड, जैसे कि नंबर 1 इसके रिगार्डिंग कुछ हम देख सकते हैं, चीजें कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, यू आर टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यूज टू गेट योर एलोकेटेड कोटाज ऑफ द कॉमोडिटी। ये हो सकता है कि आप देखते हो कि जब राशनिंग जो शॉप्स होती हैं, वहां पर उस कॉमोडिटी में अपना जो आपको कोटा अलॉट किया गया है, उसको लेने के लिए आपको एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है, आप लाइन में खड़े रहते हैं और वो शॉप बंद करके चले जाते हैं कि टाइम खत्म हो गया जी, या फिर अब आपका जो है गुड्स खत्म हो गई है, तो वो आपको एक लंबी क्यू में खड़ा रहना पड़ता है अपना जो है एक अलॉटेड कोटे को लेने के लिए। सेकंड क्या प्रॉब्लम आती है कि यू मे बी ऑफर्ड अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको ये भी हो सकता है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दिया जाए। और तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि राशनिंग गुड्स आर ऑफन सोल्ड इन ब्लैक मार्केट रादर देन बीइंग डिलीवर्ड टू द पुअर। ये होता है कि कई बार आप देखते हो कि शॉप वगैरह बंद रहती हैं, कहते हैं कि शॉर्टेज होगी जी, प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास, दुकान पे प्रोडक्ट ही नहीं है, शॉप पे प्रोडक्ट ही नहीं है, और फिर उसकी क्या कर ली जाती है, उसकी होल्डिंग कर ली जाती है और ब्लैक मार्केट्स में उसको बेचा जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ब्लैक मार्केटिंग कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी and keeps poorest of the poor in a state of deprivation. So if a price ceiling with rationing is to succeed, the government must improve its distribution system. गवर्नमेंट को अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना ही चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि प्राइस सीलिंग के साथ जो ये राशनिंग के साथ को सक्सेसफुल बनाना है इस स्कीम को, तो गवर्नमेंट को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी। एंड द गवर्नमेंट मस्ट इवॉल्व अ सिस्टम दैट इंश्योर दैट गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द पुअर। क्लियर? So next topic is price flow. Next topic is price flow. Okay, price ceiling clear हो गई आपको. Next is price flow. So price floor means अब price ceiling में तो क्या था, maximum prices fix किए जाते हैं, जबकि प्राइस फ्लोर में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। प्राइस फ्लोर मीन्स द लोवेस्ट और मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है ना, एक प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस फॉर फर्म प्रोडक्ट। और ये जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं ना, ये किन गुड्स के लिए प्राइस फिक्स किए जाते हैं, जो फर्म प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। जो फार्मर्स जो है ना, जो अपने जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन पर, ठीक है, जो फार्मिंग प्रोडक्शन होती है, फार्मिंग प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर ये प्राइस फ्लोरिंग का काम किया जाता है। एंड दिस रेगुलेट्स इनकम ऑफ द फार्मर। और ये किसको रेगुलेट करती है, फार्मर्स के इनकम को। अब फर्म प्रोडक्ट लाइक जैसे व्हीट एंड राइस है, ठीक है, ये हमें पता है कि सीजनल है, ये नेचर के अकॉर्डिंग ये सीजनल है ये। एंड दीज प्रोडक्ट आर हार्वेस्टेड एंड सोल्ड बाय द फार्मर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। शॉर्ट टाइम प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम स्पैन। और आपको सबको पता है कि भाई देखो, अब एक सीजनल है ये, तो जिस टाइम पर इनकी क्रॉपिंग होगी या हार्वेस्टिंग होगी उसी टाइम पर होगी, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इनके लिए। सो ऑफन तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ ग्लट मतलब एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। अब एक ही टाइम पर सारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, तो मार्केट में क्या हो जाती है, इनकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है। और हमें पता है जब एक्सेस सप्लाई होगी तो इससे क्या होगा, इट लीड टू द प्राइस क्रैश। अब एक्सेस सप्लाई में फार्मर को क्या करने पड़ते हैं, अपने प्राइसेस को कम करने पड़ते हैं। सो इवन अ गुड हार्वेस्ट ब्रिंग्स पॉवर्टी। ओके, सो हाई आउटपुट लीड टू लो इनकम।
अब जब उनकी आउटपुट ज्यादा हो रही है और इनकम लो हो रही है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो गई, मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई हो गई, तो इससे क्या हुआ कि जो फार्मर है उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्राइस कम करने पड़ेंगे, प्राइस कम करने पड़ेंगे तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। सो सच अ सिचुएशन वुड कंपेल द फार्मर टू कट हिज कल्टीवेशन। तो अब उनको पता, अब जब वो इस तरह की सिचुएशन हमेशा ही बनी रहेगी तो फार्मर्स को कंपेल, किस चीज के लिए कंपेल होना पड़ेगा कि वो अपनी कल्टीवेशन में क्या कर दे, कट कर दे, उसको कम करे कल्टीवेशन। अगर, अब सिंपल सी बात है, अगर वो कल्टीवेशन कम करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग कम करेंगे, तो उससे जो है नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की जो है शॉर्टेज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन में अगर कट कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको जो है कम प्राइसेस के ऊपर सेल करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाती है, तो इससे क्या होगा, इट कुड लीड टू नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड टू रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर as well as avoid shortage of the food grain in the country। तो इसीलिए हमारे इकोनॉमी में फार्मर की इनकम को रेगुलेट करने के लिए, या ये कहें कि कंट्री में फूड ग्रेन की शॉर्टेज से उसको बचाने के लिए, द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस ऑफ दीज क्रॉप्स। गवर्नमेंट क्या करती है, एक इनके जो है फ्लोर प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है इन क्रॉप्स के। ओके, यानी कि अ मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड say for wheat which the traders must pay to the farmer in the wholesale market। ये वो प्राइस होते हैं जो कि एक ट्रेडर्स को होलसेल मार्केट से में फार्मर को इतने प्राइस देने ही, पे करने ही पड़ेंगे। और ये प्राइस हमेशा क्या होंगे, ये प्राइस हमेशा जो मार्केट प्राइस होते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस होते हैं, उससे ऊपर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये उससे मोर देन होते हैं, उससे ऊपर डिसाइड होते हैं, जबकि प्राइस लिंक क्या होते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डिसाइड किए जाते हैं, और ये ऊपर, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या होते हैं, वो इतने कम होते हैं कि फार्मर जो है वो उसमें क्या करेंगे, उसमें उनकी कॉस्ट भी नहीं निकल पाती। बट द ट्रेडर में नोट बाय व्हीट एट द फ्लोर प्राइस। और अगर ये भी हो सकता है कि ट्रेडर जो है वो इस फ्लोर प्राइस के ऊपर व्हीट को नहीं खरीदे। सो व्हाट हैपेंस इन अ सिचुएशन, अब यहाँ पर ये भी तो प्रॉब्लम आ गई ना कि अब ट्रेडर कोई ना मजबूर है कि वो वो व्हीट परचेज करें ही करें। तो अगर वो इस फ्लोर प्राइस के ऊपर व्हीट को परचेज नहीं करते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन सच अ सिचुएशन। सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफर्स स्पॉट प्राइस, आपने पढ़ा होगा मिनिमम स्पॉट प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉट प्राइस ऑफर करती है फार्मर्स को, एंड इट इज अ प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स विच दे फेल टू सेल इन द ओपन मार्केट। ये वो स्पॉट प्राइस होता है जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स की सारी क्रॉप को परचेज कर लेती है, जो कि वो ओपन मार्केट में सेल करने में फेल हो गई है, तो वो सारा प्रोडक्ट कौन खरीद लेगा, गवर्नमेंट खरीद लेती है। ओके, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी अब फार्मर को क्या है, एक सपोर्ट मिल गई कि भाई अब मुझे लॉस नहीं होगा, अगर मेरा प्रोडक्ट जितना भी सेल नहीं होगा तो गवर्नमेंट मुझसे इस प्राइस के ऊपर तो ले ही लेगी। तो उनका एक जो रिस्क होता है ना, एक उनको जो टेंशन होती है, एक रिस्क जो उनको एक अनसर्टेनिटी जो मार्केट के अंदर बनी रहती है, वो उससे बच जाते हैं। ठीक है, वो उससे फ्री हो जाते हैं। तो इनफैक्ट फ्लोर प्राइस इनवेरिएबली इम्प्लाइज स्पॉट प्राइस एज वेल। तो यहाँ पर आप यस, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, द डायग्राम शोज ओपी इज द इक्विलिब्रियम, ओपी इज द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, एंड ओक्यू इज द, यहाँ पर ओपी पर और ओक्यू जो है आपके पास ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ व्हीट। यहाँ पर हम व्हीट की प्रोडक्शन के ये डिमांड और सप्लाई कर्व में बता रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट फिक्सेस, गवर्नमेंट कितने फिक्स कर रही है, देखिए अब ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, अब गवर्नमेंट ने इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर फिक्स किया, ओपी स्टार ये फिक्स कर दिया। ओके, सो द गवर्नमेंट फिक्सेस ओपी स्टार एज द फ्लोर प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो अब इससे क्या हुआ, देखो इससे भी वही प्रॉब्लम आएगी, एक्सेस एंड यहाँ पर एक्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इससे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई पर। अब डिमांड कब ये है, सप्लाई ये है, तो डिमांड आपकी अब यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो गई और सप्लाई ज्यादा होगी, यानी कि ये कौन सी सिचुएशन हो गई, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई, या आपके पास क्या है कि डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन हो गई। सो यहाँ पर यहाँ देख रहे हो कि इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड OQ2 OQ1, ओके। और क्या हुआ, एक्सेस सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई OQ2 OQ2, यहाँ पर OQ2 पे पहुंच गई है, ठीक है। यानी कि आपके पास कितना हो गया, ये जो एक्सेस सप्लाई है वो कितनी हो गई, ए बी मतलब Q1 Q2, ओके। सो द गवर्नमेंट, अब ये जो एक्सेस सप्लाई है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी इसको, अभी आपको बताया था, गवर्नमेंट बायज दिस सरप्लस एंड स्टोर्स इट एज अ बफर स्टॉक। वो इस सारे के सारे सरप्लस को परचेज कर लेगी और उसे अपने क्या करेगी, बफर स्टॉक बना लेगी, बफर स्टॉक में उनको बनाकर रख लेगी। सो दिस स्टॉक इज यूज फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये स्टॉक किसके लिए यूज किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। So however, the cost of storage of wheat is a major demerits of the floor price or spot price policy of the government. Clear, students? So now, yes, so this chapter is completed now. So that's all for today. Have a good day.